With the name of Allah, who is the most beneficent and merciful. Class 7, Social Studies, Lesson Climate Region of the Muslim World, Chapter 2, page number 4 till 9. So student, we are going to read, this is the front page of your book, and now we are going to start this chapter, and this is Chapter 2, Climatic Region of the Muslim World. So in the first chapter we have studied about Muslim world. Now we are going to discuss about climate of the region. So deserts, as we know, in the last unit we have discussed that mostly regions are covered with desert, and there are different names of the desert which are in Muslim world. Now here are some more mentioned deserts which are here in the region of the Muslim world. So you can go through this paragraph, and it's very easy to understand. You will get some more key information and names of some deserts of the Lut in Iran and others. Then we go to semi-desert, जिसको कहते हैं scrublands, like this. You can see the third desert. ये देखें scrublands कहलाती है. ये तो एक पूरा desert है, right? इसमें कुछ भी नहीं है. But this is called scrubland, right? And you may also read this chapter and paragraph. Here are some roots and some dry plants and vegetables, and it is very difficult for a man to survive, but only the herd of sheep and goats go and get these stuff. They are dry vegetables, and it is not easy to eat for them. Easy to eat. Now then we go to page number 5. Here is some tropical grassland, right? This is called tropical grassland. Grassland and tropical. These are usually found between the desert and the tropical forest के बीच में पाई जाती हैं. They are warm throughout the year but have only a small amount of rain, 500 to 1500 millimeter, which fall between April and September in northern hemisphere पे होती हैं. They have scattered trees and bushes and long grass which dies down in the long dry season in Africa. Such grasslands are home to many game animals. Buffaloes, zebras, giraffes, elephants, rhinos, lions and tigers, and have a flourishing tourist industry with hundreds of thousands of people going on safaris to watch the animals. Pakistan once had a lot of this type of climate and vegetation, but now almost none is left. The land has been cleared, and with extra water from irrigation, all kinds of crops are grown on it. अब इसमें crops grow की जाती है tropical grassland में. Then we go tropical forest. This is a picture of tropical forest. ये रेन फॉरेस्ट भी कहलाते हैं, मलेशिया के अंदर है. मुस्लिम वर्ल्ड के अंदर ये फॉरेस्ट हैं जो कि 30 to 40 सेंटीमीटर डायमीटर पे घिरे हुए हैं, राइट. यहाँ पर मुख्तलिफ किस्म के एनिमल्स भी पाए जाते हैं, जिसके अंदर यहाँ पर ये बता लिजर्ड्स हैं, इंसेक्ट्स हैं, स्नैक्स, वो भी पाए जाते हैं मलेशिया के अंदर. मलेशिया के दरख्तों से रबड़ मिलती है, ये पाकिस्तान में इंपोर्ट होती है, ठीक है. मैंगोज़ हैं, पाइनएप्पल्स हैं, वो भी आते हैं और हम भी यहाँ से एक्सपोर्ट करते हैं. लेकिन ख़ास तौर पर रबड़ हो गया, पेपर हो गया, स्टेशनरी का ज़्यादातर सामान मलेशिया से आता है ट्रॉपिकल फॉरेस्ट की वजह से. देन वी गो टू पेज नंबर 6. अच्छा जी, यहाँ पर ये टेम्परेट डेजर्ट, ये टेम्परेट डेजर्ट कहलाते हैं. दीज आर ड्राई लैंड गेटिंग 500 to 300 millimeter रेन्स a year बट नॉट एज वार्म एज द मोस्ट डेजर्ट. जैसे होती हैं वैसे इतने नहीं होती गर्म मुस्लिम वर्ल्ड में. ज़्यादातर ईरान, अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया स्टेट्स एंड पार्ट्स पाकिस्तान बिलोंग टू दिस क्लाइमेट. पाकिस्तान के अंदर भी इसी तरह का क्लाइमेट पाया जाता है टेम्परेट डेजर्ट का. नेचुरली दे हैव स्मॉल ट्रीज होते हैं इधर, तो स्पेशली अकेसिया एंड कासिया विद मैनी कोर्स प्लान एंड ग्रास. यहाँ पर प्लेन एरिया भी है, ग्रास भी है, और आगे जाके देखें माउंटेन्स भी नज़र आ रहे हैं. तो इस तरह से ये प्लेन एरिया कहलाता है. Traditionally, these lands have been the region of the nomadic people with their herds of animals होते हैं. Today, with much irrigation and fertilizer, many are growing reasonable crops. Uzbekistan, the whole of which is temperate desert, is a fifth, although this has almost drained the Caspian Sea, from which most of the water has been taken. Parts of the Pakistan naturally fall into the category, but irrigation from the rivers and tube well have turned them into reasonable farmland. तो ये जो हमारे यहाँ एरीगेशन होती है, जैसे कि आपको पता है, मैंने डिस्कस किया था पहले भी, कि ट्यूबवेल के ज़रिए होती है, रिवर के ज़रिए होती है, तो हम इसको काश्तकारी में लेकर आ जाते हैं. लेकिन ये जो है स्टेप्स इन कज़ाकिस्तान के बारे में. नाउ ये क्या है, मोरक्कोस मेडिटेरेनियन लैंडस्केप. ये लैंडस्केप है, ठीक है. पहाड़ भी हैं, ग्रासी भी है, कंस्ट्रक्शन भी हो रही है.
मेडिटेरेनियन, मिड के अंदर आते हैं। दिस इज़ अ वेरी फेवरेबल क्लाइमेट विद माइल्ड वेट विंटर्स एंड फेयरली वार्म dry summer. Unfortunately, the Mediterranean climate is not very widespread, but it forms a narrow belt around the shores of the Mediterranean Sea. Mediterranean Sea के साथ जो इलाके लगते हैं वो बेल्ट के इलाके कहलाते हैं, तो ये बेल्ट के अंदर मौजूद है। The coastal areas of Morocco जैसे अल्जीरिया, तुनीसिया, सीरिया, तुर्की एंड लेबनान enjoy this rich climate. इस तरह के क्लाइमेट है वहाँ पर, ठीक है, और वो इससे फ़ायदा उठाते हैं। फ्लावर्स, वेजिटेबल्स, ऑयल, फ्रूट्स यहाँ पर ग्रो किए जाते हैं, और स्पेशली जो है यहाँ पर जो है वेजिटेबल्स हैं, और आल्सो फ्लॉन टू रिच मार्केट ऑफ द नॉर्दर्न यूरोप की मार्केट को उन्होंने कैच किया हुआ है। पेज नंबर 7 आ गया, टेम्परेट ग्रासलैंड। ये ग्रासलैंड, देयर आर एरियाज वेयर इट इज़ रीजनेबली वार्म गर्मी होती है, बट विद फेयरली लो रेनफॉल, लेकिन यहाँ पर जो बारिश होती है वो कम होती है, अबाउट 400 मिलीमीटर आ ईयर, साल में 400। द नेचुरल वेजिटेशन इज लॉन्ग ग्रास, लंबी लंबी ग्रास होती है, विद स्मॉल श्रब्स, जड़ी बूटियाँ भी होती हैं, एंड अदर प्लांट्स, और दूसरे प्लांट भी हैं। बट इन मोस्ट ऑफ द मुस्लिम वर्ल्ड दीज हैव बीन क्लियर्ड फॉर जनरल फार्मिंग। ये तमाम चीज़ों को अब जनरल फार्मिंग के लिए रख लिया गया। सीरियल क्रॉप सच एज वीट एंड बार्ले आर ग्रोन, पैदा की जाती हैं यहाँ पर ये अनाज, और बट विद इरिगेशन अ वाइड वैरायटी ऑफ अदर प्लांट्स एंड फ्रूट्स आर आल्सो प्रोड्यूस। और अब जो है यहाँ पर टेम्परेट ग्रासलैंड के अंदर जो है मुख्तलिफ़ किस्म के फ्रूट्स उगाए जाते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के जो है काश्तकारी की जाती है फ्रूट्स की और वेजिटेबल्स की और मुख्तलिफ प्लांट्स की। दिस क्लाइमेट रीजन इज़ एक्सलेंट फॉर द रेयरिंग ऑफ एनिमल्स एंड स्पेशली लाइफ स्टॉक। ज़ख़ीरा अंदोज़ी के लिए ये बहुत फ़ायदेमंद है, और जानवरों के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। ज़ाहिर है घास होती है तो खाते पीते चरते हैं, वो सेहतियाब हो जाते हैं। और ये जो तस्वीर है ये फार्मर्स इन टर्कीज प्लेन, टर्कीज की जो जगह है प्लेन वहाँ पर है ये। इन द मुस्लिम वर्ल्ड टर्की, सीरिया, लेबनान, पैलेस्टाइन एंड पार्ट्स ऑफ द जॉर्डन एंड इराक आर नेचुरली टेम्परेट ग्रासलैंड है ये। ऑल्दो द सॉइल इन मोस्ट ऑफ टर्की इज नॉट एक्सेप्शनली फर्टाइल, ज़्यादातर जो तुर्की की सॉइल है वो फर्टाइल नहीं है, यानी खेती बाड़ी नहीं की जा सकती। इट इज़ वन ऑफ द वेरी फ्यू कंट्रीज इन द वर्ल्ड विच कैन प्रोड्यूस इनफ फूड ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ फीड ऑल ऑफ इट्स पीपल विदाउट इम्पोर्ट। बगैर कोई इम्पोर्ट किए बहुत कम कंट्रीज़ हैं जो कि अपने लोगों की ज़रूरियात को पूरा करते हैं, राइट। यहाँ पर द पाथ ऑफ द समर मानसून विंड्स आ रही हैं, ये देखिए यहाँ से श्रीलंका, बे ऑफ बंगाल से गुजरते हुए आती हैं। ये मानसून की बारिश होती है ना, पाकिस्तान में आपने देखा होगा मानसून की बारिश हो रही है, तो बेटा ये यहाँ से लेबनान, यहाँ से श्रीलंका और अरबियन सी और इंडियन ओशन से हवाएं आती हैं जो कि बांग्लादेश से दाखिल होती हैं, और बारिश के साथ दबा के बारिश, बहुत तेज़ी के साथ बारिश होती है। और आपके पास तो अभी वीडियोस भी आ रही होंगी इंडिया के अंदर जो तबाहियाँ हुई, गुजरात में जो तबाहियाँ हुई हैं, ये प्रेशर इसका कम होना शुरू हो जाता है कुदरती तौर पे, और पाकिस्तान में आके कुछ जाके होती है, ये प्रेशर कम हो गया, जिसकी वजह से अभी देखें कितनी नुकसान हुआ है। तो फिर आप बाद में बताएं कि क्या होगा, है ना, अगर खुदा न खासा इस तरह की बारिशें हो जाएं। तो अल्लाह पाक ने हमें इसको सेव किया हुआ है, हालांकि मानसून की बारिश बहुत ख़तरनाक होती है। पेज नंबर 7 कंप्लीट होता है, पेज नंबर 8 पे जाते हैं, और ये आखिर में आ गया मानसून, जो कि हमारे मुल्क के अंदर भी बारिशें होती हैं, राइट। सो मानसून आर लाइक लैंड एंड सी ब्रीजेज ऑन मच लार्जर स्केल, ज़्यादा स्केल पे होती हैं, जैसे मैं आई हैव ऑलरेडी डिस्कस यू। इन जनरल द विंड ब्लो फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट फॉर 6 months ऑफ द ईयर, साल के 6 महीने नॉर्थ ईस्ट से हवाएं चलना शुरू हो जाती हैं, एंड फ्रॉम द साउथ वेस्ट की तरफ फॉर द अदर 6 months, 6 महीने साउथ वेस्ट से शुरू हो जाती हैं। जैसे कि 2 जगह बताई ना, देखिए मैं मैप दिखाता हूँ आपको, ऊपर वाला उसके अंदर आपको डिस्कशन होगी, ये देखिए ये 2 जगह से, यहाँ से भी और फिर यहाँ 6 महीने इधर से, 6 महीने इधर से। अच्छा जी, फिर दोबारा हम अपने पैराग्राफ की तरफ जाते हैं। इन द हॉट सीजन, अच्छा यहाँ पर डिस्कस हो गया साउथ वेस्ट ऑफ द 6 months, दो समटाइम द विंड डायरेक्शन इज डिफेक्टेड और टर्न बाय हाई लैंड और फॉर अदर रीजन्स, कभी कभार जो हवाएं और तेज़ हो जाती हैं और ऊंची मकामात पे पहाड़ी इलाकों में चले जाती हैं वो हवाएं, कुछ ना कोई रीज़न की वजह से। इन द हॉट सीजन, गर्मी के मौसम में, द लैंड हीट्स अप एंड द एयर अबव इट राइजेस, गर्मी ज़मीन गर्म होती है और गर्म हवा ऊपर की तरफ उठती है, पुलिंग इन कूलर एयर फ्रॉम ओवर द सी, और वो ऊपर की तरफ, समंदर के ऊपर की तरफ जाती हैं, ठंडी जगह पर वो गर्म हवाएं। दिस एयर इज़ फुल ऑफ मॉइस्चर, से भरी हुई होती हैं, बिकॉज इट क्रॉसेज द ओशियन, समंदर को क्रॉस करती हैं, ड्रॉस मच ऑफ दिस एज रेन, और बारिशें करती हैं। When it reaches the land, ज़मीन पर पहुँचती हैं। इन द कूल सीजन, ठंडे मौसम में, द लैंड इज कोल्डर वाइल द सी रिमेन्स वार्म,
और जो हाईलैंड होती हैं वो ठंडी हो जाती हैं और ज़मीन जो है वो समंदर जो है वो गर्म ही रहता है. द एयर ओवर द सी नाउ राइजेस, और हवा जो है वो समंदर के ऊपर से गुजरती हुई उठती है. ड्रॉनिंग इन एयर फ्रॉम द लैंड, ज़मीन की तरफ जाती है ड्राइंग बहते हुए. तो दिस एयर इज ड्राई, वो ड्राई होती है. सो दैट द 6 months ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न विंड्स हैव लिटिल मॉइस्चर इन दैम, उसके अंदर लिटिल मॉइस्चर होता है. मॉइस्चर मीन नमी. एंड लिटिल रेनफॉल, और बारिश भी कम होती है. इन द मुस्लिम वर्ल्ड ओनली द सब कॉन्टिनेंट एंड साउथ ईस्ट एशिया आर अफेक्टेड बाय मानसून. साउथ ईस्ट एशिया जो है अफेक्ट होते हैं इस मानसून की वजह से. अंडरस्टैंड? Okay, now we go to next chapter, and this is not next chapter, next page, and this is page number 9. मानसून के बारे में बात हो रही है. साउदर्ली मानसून ब्रिंग हैवी रेनफॉल ओवर 400 millimeter a year or more, so that in most places there is thick rich vegetation such as in tropical forest. Pakistan gets its monsoon rains from July to September. जुलाई और सितंबर तक आती हैं. But these winds are turned and come from the south east की तरफ से आती हैं rather than the south west के मुकाबले में. As a result, नतीजतन they have to cross India first, उनको इंडिया क्रॉस करना होता है. And have dropped much of their rains by the time, उस वक्त तक ज़्यादातर बारिश उधर हो जाती है और they reach पाकिस्तान, जब वो पाकिस्तान पहुँचती हैं हवाएं. Only the north of the country gets real monsoon rainfall. जो असल बारिश होती है पाकिस्तान कंट्री के नॉर्थ के इलाके में होती है. On the other hand, और दूसरी तरह in much of the Malaysia and Indonesia, both northerly and southerly monsoon come across the ocean, so that these countries get rain throughout the year. पूरे साल बारिश यहाँ पर होती रहती है. Pakistan also has winds from the west in the December-March period. These are called the westerly depressions, and they do bring a little rain, although they have dropped most of their moisture during their long journey across Iran and Afghanistan. ये हमारा चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट होता है माय डियर स्टूडेंट्स. कुछ चीज़ें जनरल नॉलेज की थी, कुछ क्लाइमेट्स के हवाले से थी. आई होप यू अंडरस्टैंड. नाउ वी गो टू क्वेश्चन आंसर. सो यू हैव टू अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन आंसर फ्रॉम 1 to 6 and write the answers in your book. And for your help, I have already mentioned you answers of these questions over here. So these are the answers, so you have to copy down these answers from 1 to 5. Question number 6. Compare the kind of climate conditions you find in Pakistan and Indonesia. So don't attempt question number 6. Leave this question number 6. I have given you question number 6 here. Here. Question number 6. Match column with column B. So here are the names of some deserts. So you have to mark कि दश्त-ए-लुद, like दश्त-ए-लुद is in Iran, so you have to match it. Go through the book again and try to understand and listen my key points, so you will understand how to match it. Is it clear? Question number 7 is about MCQs, right? So multiple choice question. You have to do it yourself. It is from A, B, C, D till J, right? I hope you understand this topic, and see you inshallah completing this work. Submit your copy for checking. So that as soon as you get the copy check, so you prepare your midterm exams. So wish you bad luck, student, for the second chapter SST, and take care yourself, your family, your friends and your neighbors, right? Stay home and save yourself. Allah Hafiz.